Hello students, see in the last video we discussed about principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number, and we discussed the table in detail. So now we will study the shapes of atomic orbitals. How many orbitals are there? See, there are 4 orbitals S, P, D, F. And these orbitals we are getting the information from the azimuthal quantum number. So if L is equal to 0, it is S orbital. If L is equal to 1, it is P orbital. If L is equal to 2, it is D orbital. And if L is equal to 3, it is F orbital. So orbitals are there and orientations are also there. So orientation values we are getting from magnetic quantum number. देखो S के लिए एक ही ओरिएंटेशन है, P के लिए 3 है, D के लिए 5 और F के लिए 7 और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पिन क्वांटम नंबर, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. तो S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, P में एक ऑर्बिटल में 2, ऐसे 3 ऑर्बिटल है तो 2 3 6 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन P ऑर्बिटल्स. और देखो D ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल्स है, 5 ओरिएंटेशंस है, एक में 2 है तो 5 में 10 होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन. सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन D ऑर्बिटल्स आर 10 और F में 14 होते हैं क्योंकि 7 ऑर्बिटल्स उसके हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे कैन एक्यूमुलेट दीज ऑर्बिटल्स. अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो S में जाएगा, S फुलफिल हो गया तो P में जाएंगे, लाइक दिस. सो वी विल स्टडी द शेप. अभी उनके शेप्स कैसे हैं, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D, F इनके. तो देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट गिवन पॉइंट इन एन आइटम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन साई स्क्वायर एट दैट पॉइंट. तो देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ज़्यादा है ये फाइंड आउट करने के लिए ये वेव फंक्शन का यूज होता है. सो अकॉर्डिंग टू मैक्स बोर, साई स्क्वायर एट अ पॉइंट in an atom is the probability density of electron at that point. तो ये क्या है, probability of density of electron. Density means जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है. So that is the place where electrons are there. So it can be studied using psi square function. देखो 4.7 figure, that is this. तो क्लाउड ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी प्लॉटेड. देखो डेंसिटी प्लॉटेड मीन्स वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है. वैसे शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी डायग्राम ऑफ 1s and 2s atomic orbitals. These diagrams appear like a cloud. The electrons cloud of 2s orbitals are shows one node which is a region with nearly zero probability density and displays a change the sign for its corresponding wavelength. देखो ये 1s है और 2s है, 1s में इलेक्ट्रॉन्स है और 2s में एक नोड दिख रहा है आपको. सो इट इज़, और ये अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो उस नोड के जगह पे एट दैट नोड इट्स ज़ीरो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वहाँ पे ज़ीरो डेंसिटी है. ओके देखो द बाउंड्री सरफेस डायग्राम, ये सरफेस डायग्राम है. देखो फिगर 4.7b shows the boundary surface diagram of atomic orbitals of 1s and 2s which are spherical in shape. Here the boundary surface is drawn in a space for an orbital such that the value of probability density psi square is constant and encloses a region where probability of finding electron is typically more than 90%. Such a boundary surface diagram is good representation of shape of an orbital. देखो इसका मतलब मैं बताती हूँ आपको इन शॉर्ट. दिस इज़ द शेप ऑफ S ऑर्बिटल. S मीन्स L इज इक्वल टू 0. तो S ऑर्बिटल का शेप ऐसे स्पेरिकल होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं.
तो ये 1s है, उसका छोटा है, फिर बाद में जो है वो 2s है। देखो बीच में सेंटर में आपको ये दिख रहा है। और इट इज़ अ सर्कुलर पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर at 90%. Okay, so all these things is related with probability density psi square. देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी दिया है, an atom has 2 electrons in its 4s orbital, write the values of 4 quantum numbers for each of them. 4 quantum numbers लिखने हैं हमें, कौन से हैं? n, l, ms, ml। हाँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखो 4s is having 4 stands for principal quantum number 4, that is it is a 4th orbit or 4th shell. S stands for subshell S having the value azimuthal quantum number L is equal to 0. In the H subshell there is only one orbit and has magnetic value M is equal to 0. The 2 electrons in this orbit have opposite spin. Therefore the 4 quantum numbers are, देखो N is what? N इज इक्वल टू 4। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2 ही रहेंगे, क्योंकि S और सबशेल है। S सबशेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। P में 6, D में 10, F में 14। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, देखो पहला इलेक्ट्रॉन हो दूसरा इलेक्ट्रॉन हो, तो उन सबके लिए N, L, M ये सेम रहेंगे, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर अलग रहेगा, क्योंकि ये एक ही ऑर्बिटल में है। एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं? दे आर हैविंग विथ अपोजिट स्पिन, वन अपवर्ड डायरेक्शन, वन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे आपको ये लिखना आना चाहिए। ओके, increasing value of n, it means that the electron is located further away from the nucleus as principal quantum number n increases। देखो n की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर न्यूक्लियस से दूर जाते हैं। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट होगा, n इज इक्वल टू 2 है तो सेकेंड ऑर्बिट। जैसे अगर n की वैल्यू अगर 7 है तो वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, सो देयर साइज इंक्रीजेस। तो एस ऑर्बिटल का शेप क्या है? इट इज़ अ स्पेरिकल शेप। स्पेरिकल शेप मीन्स लाइक दिस, स्पेरिकल। हाँ, सर्कुलर शेप नहीं होता है, इट इज़ अ स्पीयर। हेलो स्पीयर नहीं है, ये हेवी स्पीयर है, ऐसे मास भरा हुआ। ओके, स्पीयर है, स्पीयर। सो इट इज़ अ स्पेरिकल इन शेप एंड देयर साइज इंक्रीजेस with increasing value of n. So this description you have to give when it is asked to describe or draw the shapes of s orbital. You have to just draw the shapes। यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको 1s 2s, इतना ही लिखना है, क्योंकि देखो अभी ये p के लिए है तो p के लिए एक्सिस दिखाना है आपको, s के लिए नहीं दिखाना है। देखो नाउ नेक्स्ट इज शेप्स ऑफ 2p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स है, या फिर 2p लिखोगे तो भी चलेगा। नाउ दिस फिगर 4.8 डिस्प्ले द बाउंड्री सरफेस डायग्राम। बाउंड्री सरफेस डायग्राम विथ न्यूक्लियस बीइंग एट द ओरिजिन फॉर 3 2p ऑर्बिटल्स। कितने हैं? 3 रहते हैं। p ऑर्बिटल्स आर हैविंग 3 ओरिएंटेशंस, मतलब 3 रहते हैं, और एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 3 में 6 इलेक्ट्रॉन्स। So its value is n is equal to 2, L is equal to 1. It can be seen that each p orbital has 2 lobes on 2 sides of nodal plane passing through the nucleus. A nodal plane has psi square is very close to 0. अभी देखो ये कैसे है? इट इज़ अ डम्बेल शेप। तो डम्बेल शेप का जो बीच में सेंटर है ना, वो है न्यूक्लियस, वहाँ पे न्यूक्लियस है, और ये ऑर्बिटल्स है। उनका शेप कैसे है? डम्बेल शेप है इनका। और देखो, और इनकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? एल और एन। एन इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 1। एल इज इक्वल टू 1 है तो ये पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल में 3 ओरिएंटेशंस होते हैं अलोंग द एक्सिस। देखो एक एक्स एक्सिस के एक्सिस से ओरिएंटेशन होगा, एक वाई एक्सिस से ओरिएंटेशन होगा, एक जेड एक्सिस से ओरिएंटेशन होगा।
all the diagrams are given. You have to draw the same diagram along the axis x y z, 3 axis है. It's a 3-dimensional figure. So तीनों डायरेक्शन में पी एक्स पी वाई पी जेड ऐसे इनके एक्सिस के ऑर्बिटल्स के नाम है. देखो ऊपर लिखा है पी एक्स, सो इट विल हैव द ओरिएंटेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस. पी वाई पी जेड 3 ऑर्बिटल्स आर देयर एंड ड्रॉ द एक्सिस आल्सो प्रॉपरली. जैसे दिया है वैसे ही देखो. अ नोडल प्लेन हैज़ साई वैल्यू इट इज़ वेरी क्लोज टू 0. The size and energy of the dumbbell shaped 3p orbitals are same. सबकी size और energy same है. Their orientations in the space are however different. उनका orientation कैसे different है? क्योंकि they orientate or they rotate in along the axis. Slopes of 3 2p orbitals are along the axis, that is xyz axis. According to the corresponding orbitals are designated as 2px, 2py and 2pz. The size and energy of the orbitals in p subshell increases with increasing the principal quantum number. जैसे अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, ये 2p के लिए है, 3p के लिए होगा तो और उनका साइज़ बढ़ेगा. 4p भी हो सकता है, 5p 6p 7p तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं. सो देयर साइज विल इंक्रीज एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस. अंडरस्टूड. दिस इज़ द p ऑर्बिटल एंड हैविंग द शेप डम्बेल शेप. और आपको ये दोनों के डायग्राम निकालना है, 1s s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स के. See, after this we will have d orbitals. d orbitals में 3d का हम देखते हैं. 3d orbitals देखो, d ऑर्बिटल कब आता है? व्हेन l इज इक्वल टू 2. एंड d ऑर्बिटल्स में देखो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5 ओरिएंटेशंस होंगे. और 5 ओरिएंटेशंस है तो ईच ऑर्बिटल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स आर 10. एंड हियर देयर आर 5 ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद d सबशेल. कितने ऑर्बिटल्स है? 5. s में कितने हैं? 1. p में 3. d में 5. एंड डेजिग्नेटेड बाय dxy. देखो ये कैसे है? डबल डम्बल शेप है, तो ये 2 एक्सिस के बीच में रहते हैं. तो dxy जो है, dxy के बीच में ऑर्बिटल्स रहेंगे. दूसरा कैसे है? dyz एक्सिस, y और z के बीच में रहेंगे ऑर्बिटल्स ऐसे. और थर्ड है dxz. दीज 3 आर जनरेटेड एंड डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स आर देयर. और उसके बाद फोर्थ जो है वो डबल, देखो dx2y2 एंड dz2. ये थोड़ा सा अलग है dz2 वाला लास्ट. द शेप ऑफ द 5d ऑर्बिटल्स आर शोन इन द फिगर 4.9. In spite of difference in their shape, the 5d orbitals are equivalent in energy. सबकी एनर्जी सेम है, लेकिन सब में डायग्राम में अलग अलग है. देखो थोड़े से. The shape of 4d, 5d and 6d orbitals are similar to these of 3d orbitals. ये जैसे 4d होगा या फिर 5d 6d होगा, सब में ऐसे शेप रहेंगे. But their respective size and energy are larger as they are said दे आर मोर डिफ्यूज़. लेकिन उनकी एनर्जी और साइज़ ना थोड़े से बढ़ते जाते हैं. यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये नहीं बताए हैं. सो दीज आर डबल डम्बल शेप. ये जो डी ऑर्बिटल्स है ये कैसे होते हैं? डबल डम्बल शेप होते हैं. लास्ट में जो है E1 इट इज़ डफ नट शेप. कि यहाँ पे देखो 2 ही ऑर्बिटल्स दिखते हैं आपको, 2 ऊपर लोब्स जो है 2 दिखते हैं और थर्ड जो है ऐसे दिख रहा है देखो आपको. सो दैट इज़ डफ नट शेप. कि वो श्रिंक हुआ है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है. थोड़ा सा अलग जो है ना लास्ट वाला ई, इट इज़ अ डफ नट शेप डी ऑर्बिटल हैविंग लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द सेंटर. नाउ नेक्स्ट इज एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स. एनर्जी कैसे है इन ऑर्बिटल की वो हम देखेंगे. एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल. द एनर्जी
क्वांटम नंबर अलोन। देखो ये एनर्जी हमें कहाँ से पता चलती है? बाय नोइंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली। सी इफ n is equal to 1 means it is very close to nucleus. If n is equal to 2 it's सेकेंड और शेल। तो ऐसे इनकी एनर्जी लेवल हमें पता चलती है कैसे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। दिस इज बिकॉज द ओनली इंटरैक्शन इन दिस स्पीसीज इज attraction between the electron and nucleus. An increasing order of energy of an orbital in the hydrogen atom is given, that is 1s, उससे ज़्यादा 2s है, फिर इक्वल है, फिर देखो 2p है, 2p से ज़्यादा 3s है, जिसके तरफ वो साइन का मुंह बड़ा होता है वो बड़ा है, बाद में इक्वल है। देखो अभी थर्ड p और थर्ड d इक्वल है, लेकिन थर्ड d से कौन बड़ा है? 4s, देन 4s 4p इक्वल है, 4p इज इक्वल टू 4d, देन 4f ऐसे कंटिन्यू होता है। सो डोंट वरी, वी विल अंडरस्टैंड दिस। नीचे भी दिया है, वहाँ पे आपको और समझ में आएगा। ऑफ कोर्स द शेप ऑफ द कॉन्स्टेंट SPDF ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट। सबके शेप्स डिफरेंट है, उनकी साइज और एनर्जी भी डिफरेंट है। एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, the orbitals with the same energy and corresponding wave functions being different are called degenerated. जहाँ पे वेव फंक्शन अलग है, साइज अलग है, लेकिन एनर्जी सेम है, उन्हें कहते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। दस इन हाइड्रोजन एटम्स 2s and 2p आर डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। वो कैसे है? 2s और 2p ऑर्बिटल्स आर डीजनरेटेड। In multi-electrons atoms, there is a mutual repulsion among the electrons. The energy of an electron is in a multi-electronic electron atom, therefore depends both on principal and azimuthal quantum number. The lower the sum of n plus 1 of an orbital, the lower is its energy. तो देखो हाइड्रोजन के लिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो तो 1s में जाएगा, तो 2s और 2p वो डीजनरेटेड हो जाएंगे। लेकिन अगर जब ऐसे एलिमेंट है, एटम है कि जिनके इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, तो वो कैसे उनकी एनर्जी रहेगी या फिर कौन से ऑर्बिटल में वो जाएंगे? उसके लिए रूल है, दे विल हैव द सम ऑफ n प्लस एल वैल्यू। n प्लस एल देखना है, और किसकी वैल्यू कम आती है? द लोअर इज इट्स एनर्जी। If two orbitals have the same value, then the orbitals with lower value of n is having lower energy. देखो किसका सम कम आता है? They will have lower energy. Are you getting? n अगर दो ऑर्बिटल्स है, n प्लस एल, एक का 2 आ रहा है और एक का 3 आ रहा है, तो जो 2 आ रहा है उसकी एनर्जी कम रहेगी। अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई है दो ऑर्बिटल्स में, तो क्या करेंगे हम? एट दैट टाइम वी विल सी द लोअर वैल्यू ऑफ n की वैल्यू किस में कम है वो देखेंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज n प्लस एल रूल। क्या है? n प्लस एल रूल। For this n plus L rule, the increasing order of energy of orbital in multi-electron atoms can be written as होगा, फिर 2s फिल होगा इलेक्ट्रॉन्स। इफ मोर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दे विल गो टू 2p एंड देन दे विल गो 3s 3p। 3p के बाद 3d में नहीं जाएंगे, 4s में जाएंगे, एंड देन दे विल गो टू 3d। देखो पहला शेल जो है 1 नंबर शेल, उसमें ओनली s ऑर्बिटल है। दूसरा शेल जो है वहाँ पे 2s 2p होगा, हाँ 3p ने 2s 2p, और थर्ड में 3s 3p 3d है, और फोर्थ से f चालू होता है। d कब स्टार्ट हो रहा है? थर्ड ऑर्बिट से। p कब स्टार्ट हो रहा है? सेकेंड ऑर्बिट से। ओके, तो पहले में फर्स्ट ऑर्बिट में कौन है? सब शेल ओनली s, इसीलिए 1s लिखा है। 1 स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्बिट, s इज अ सब शेल, और 2s क्या है? 2 इज अ सेकेंड प्रिंसिपल
ऑर्बिट सेकेंड दूसरा राउंड और एस इज सबशेल। लेकिन एस के साथ पी भी है वहाँ पे 2s में, 2s 2p देन 3s 3p। लेकिन 3d और 4s में किसकी वैल्यू कम है? तो 4s की वैल्यू कम है। कौन सी वैल्यू? n+l, n+l। देखो n हम 4s और 3d में कंपेयर करते हैं। 4s में n क्या है? 4 है, l 0 है, 4 + 0 इज़ 4। लेकिन 3d में देखो 3d n की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 2 है, 2 + 3 5 आता है। तो कौन सा कम है? 4s की वैल्यू तो 4 है। सो 4s इज filled up first and then 3d, and like this way it is continued. After 3d 4p is filled, 5s is filled, 4d 5p 6s 4f, like this way it is filled. तो ये टेबल में भी हमें बताया है, देखो यहाँ पे भी है। सो इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन एटम, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई डिफरेंट ऑर्बिटल्स। द लोएस्ट टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी corresponds to the most stable, and that is the ground state of an atom. The orbital wise distribution of electrons in the ground state can be understood by studying above principle. तो अबव प्रिंसिपल क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? जिनकी लोअर एनर्जी है वो पहले फिल होंगे, ऐसे ये रूल है। ओके, सो यू टुडे यू विल ड्रॉ द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल। अच्छे से आपको वो लिखना है। ड्रॉ द एक्सिस ऑल्सो एंड राइट डाउन द शेप। एस ऑर्बिटल के लिए स्पेरिकल शेप है, पी के लिए डम्बेल और डी के लिए डबल डम्बेल शेप। यू मस्ट नो द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ओके, so draw the shapes of orbitals. See, after this we have the dependence of orbitals in l plus n वैल्यू। देखो n plus l वैल्यू हमें कैसे पता चलता है? सी 1s इज ऑर्बिटल इज देयर। यहाँ पे देखो हमने अभी लिखा, स्टडी किया है कि 1s ये पहले फिल करेंगे फिर 2s में जाएगा। तो देखो 1s की वैल्यू n प्लस वैल्यू कैसे मिलती है? 1 है तो इट इज़ n इज इक्वल टू 1, s है तो ये l इज इक्वल टू 0। सो n प्लस l 1 + 0 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट दैट स्टैंड्स फॉर n वैल्यू। कौन से ऑर्बिट को बिलोंग करते हैं वो बताते हैं हमें। और एस पी डी एफ क्या बताते हैं? वैल्यू ऑफ l। तो देखो सेकेंड ऑर्बिट जैसे 2s है, 2s मतलब n इज इक्वल टू 2 और s है तो l 0 होगा, तो 2 + 0 2 होगा। नेक्स्ट इज 2p, 2p इज n इज इक्वल टू 2 और p मतलब l इज इक्वल टू 1, 2 + 1 इज 3। ओके, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। कौन सा लोअर है नेक्स्ट में पता चलेगा। देखो n इज इक्वल टू 3, जहाँ पे 3s लिखा है थर्ड s, सो n इज इक्वल टू 3, s है तो l इज इक्वल टू 0, 3 + 0 इज़ 3। तो कौन सा पहले जाएगा? हाँ, अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हेन l + n वैल्यूज़ आर सेम एट दैट टाइम वी विल सी द वैल्यू ऑफ n। वैल्यू ऑफ n कहाँ पे कम है? 2p में कम है, 3s में 3 है, 2p में 2 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में फिर 3s में। आर यू गेटिंग? सो इन दिस वे एनर्जीज आर इंक्रीजिंग डाउनवर्ड। पहले कम किसका है? 1s का कम है, उसके बाद 2s है, 2p 3s 3p 4s 3d 4p। इन दिस वे इट विल गो। तो देखो ये भी आपको टेबल लिखना है, समझ के लिखना है। अभी 4p देखो, 4p मतलब n इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू p है और सबशेल मीन्स l इज इक्वल टू 1, 3 + 1 इज़ 4। नेक्स्ट इज ऑल्सो 4। देखो 4s है ना, 4s मतलब n4 और s है तो l 0, 4 + 0 इज़ 4। लेकिन वैल्यू ऑफ n + l इज इक्वल, बट वी विल सी
द वैल्यू लोअर वैल्यू ऑफ एन, तो किस में एन की वैल्यू कम है, 3p में कम है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में। उसके बाद आता है 3d। 3d में देखो n इज इक्वल टू 3 एंड d सबशेल है तो l इज इक्वल टू 2 आता है। सो 2 + 3 इज़ 5, लेकिन 4p के लिए भी 5 आंसर आता है। बट वी विल थिंक अबाउट द लोअर वैल्यू ऑफ n। किस में लोअर वैल्यू है, तो 3d में है। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो इन 3d। सो दिस इज द सीक्वेंस 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। ये अपने आप को आपको अपने आप आते जाएगा ये, लेकिन ये समझ के लेना है। सो यू विल ड्रॉ दिस टेबल ऑल्सो, राइट डाउन दिस इन डिटेल प्रॉपरली, जैसे लिखा है लोअर वैल्यू हायर वैल्यू वो भी लिखो। ओके।